हेलो बालक, हमारे प्रीवियस सेशन में हमने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक को कवर किया था। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक मतलब 10 क्वेश्चंस को हम आज भी कवर करेंगे। टोटल 50 एमसीक्यूज आपके होंगे। तो आपको क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी तुरंत आप इसको लाइक करिए और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको एफएम के भी, और जब आप फाइनल में होते हैं तो फाइनल के बच्चों के लिए मैं एफएम के भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। राइट, साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ इस चैनल पे मिलती है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका ये नोट्स अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 का जो मैंने कराया था सॉल्यूशन, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आप जाइए, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन को पूरा करने के बाद आप उसे भी देख लेना। और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 टू 20 को कवर करने जा रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, मतलब 50 एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। राइट, और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस है ना, इसकी जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ने वाला हूं। इस सेशन के लास्ट में मैं सर्टेनली इस बात की भी बात करूंगा कि एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज की बात करूं, तो एसएम के कौन कौन से एरियाज हैं जहां से ज्यादा केस, जहां का पोटेंशियल ज्यादा है एज फार एज द केस सिनेरियो एमसीक्यूज आर कंसर्न, ताकि आपका फोकस क्लियर हो और आप ज्यादा कंफ्यूजन आपको एग्जामिनेशन में ना हो। तो क्या ऐसे एरियाज हैं जो हाईलाइट किए जा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसे एरियाज हैं जो हाईलाइट किए जा सकते हैं। उसका भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं मैं सेशन को। स्वास्थ्य, राइजिंग स्टार इन इंडियन डायनामिक हेल्थ केयर सेक्टर, स्टैंड्स आउट एज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो किस सेक्टर में है? हेल्थ केयर में है ये। राइट, एट स्वस्थ द compass guiding their endeavor is compelling thought to emerge as the finest healthcare provider renowned for delivering accessible, top-notch healthcare services. This overreaching goal is not an isolated vision, but a thread woven into a very fabric of the organization, driving every facet of their operations. The people of the organization play a pivotal role in this journey. So, importance of people को भी highlight किया गया है. They are entrusted with translating this vision into tangible outcomes at the grassroots level. So they are entrusted with translating this tangible vision into at the grassroots level into tangible outcomes, ensuring that local operations are aligned with the grand aspiration of becoming a healthcare leader. Swasth works meticulously towards optimizing each link of the patient experience, from streamlining appointment scheduling to expediting test result delivery. Every facet of the healthcare journey is scrutinized. Swasth strategy is not merely about being a player in the market, but about strategically positioning themselves as a leader. They proactively recognize the constant innovations that could disrupt their area of expertise. To counter this, they introduce value-added offerings such as telemedicine and wellness programs. Right? Beyond this addition not only mitigates the risk, but also fortifies their long-term viability. Beyond competition, ensuring the quality and safety of patient care is paramount at Swasth. Stringent hygiene protocol, equipment maintenance regimens, and adherence to healthcare regulations form the cornerstone of the business. In parallel, the organization meticulously undertakes regular assessment as a central element of decision-making apparatus. This forward-looking exercise encompasses identifying and assessing potential risks such as regulatory changes, medical malpractice vulnerability, or shift in market dynamics, all of which could have far-reaching consequences for their long-term objectives. The implementation of such a strategy is steered by the McKinsey 7S model, which ensure a harmonious alignment of 7 critical elements: strategy, structure, system, shared value, skill, style, and staff. Right? It emphasizes that the success of long-term objective is contingent on the synchronization of these 7 elements, reinforcing the idea that strategic management is not a compartmentalized process, but a comprehensive activity. First, strategic journey through India's healthcare landscape is a testament to the seamless integration of core management concepts, guiding its actions and strategies while keeping the vision and intent at the core. So while reading the case scenario, you have to identify the main areas, the key points, right? जहां से MCQs बनेंगे या बन सकते हैं, ये आपको क्या करना है, उसी समय जज करना है।
तो क्या कह रहा है ये केस, बेसिकली स्वास्थ्य एक हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है ना, दे आर रेनाउंड, they want to emerge as a finest healthcare provider for delivering accessible top notch healthcare services, right? People के importance को highlight किया गया है, and the people are interested with translating this vision into tangible outcome at a grassroots level की बात कर रहे हैं ये लोग, right? Proactively they recognize the constant innovations that could disrupt their area of expertise, और इस डिस्ट्रप्शन को डील करने के लिए they have introduced what value added offerings such as telemedicine and the wellness programs. Quality and safety of patient care is paramount for the company. Hygiene protocol, equipment maintenance regimens, etc. are being used. Regulatory changes, medical malpractice and vulnerabilities और shift in market dynamics पे भी इनकी नजर है. McKinsey 7S मॉडल की अगर हम बात करें तो that is being given importance here. सातों एलिमेंट की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं उनके अलाइनमेंट की. सो हार्मोनियस अलाइनमेंट ऑफ 7 क्रिटिकल एलिमेंट्स. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस, राइट? सो आपने क्या करना होता है, इसके आधार पे यू हैव टू गिव द आंसर. आ जाओ. हालांकि केस में बहुत सारा थियरी डाला जा सकता है और हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको इससे बचना है, राइट? आपको ये देखना है कि कहां क्वेश्चन का ऑप्शन डाला गया है केस सिनेरियो के अंदर. How does Swasth approach to premise control, including a stringent hygiene protocol and equipment maintenance, contribute to their long-term objectives, and which concept does it align with? Right? फिर से पढ़ो इसका. How does Swasth approach to premise control, including stringent hygiene protocols and equipment maintenance, contribute to their long-term objectives, and which concept does it align with? So we are talking about strategic risk management. So it safeguards quality and aligns with the strategic risk assessment. Now this can be directly taken from the case scenario. देखो क्या कह रहा है, beyond competition, ensuring the quality and safety of patient care is at the paramount of at Swasthya. Stringent hygiene protocol, equipment maintenance regimen, and adherence to healthcare regulation from the cornerstone of this business. Right? In parallel, the organization meticulously undertake regular assessment as a central elements of the decision-making apparatus. तो हम क्या कहते हैं कि सर इसको हम सीधा केस सिनेरियो से रेफर कर सकते हैं, that it safeguards the quality and aligns with the strategic risk assessment. Right? So B is the correct answer here. बाकी कोई भी जो है वो suitable option नहीं दिख रहा है. B is the correct option here. Question number 2. How does Swasth counter the risk posed by constant innovation and disruption? तो जो constant innovation and disruption है उसको डील करने के लिए इन्होंने क्या किया? तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम द केस सिनेरियो ये क्वेश्चन है. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केस के ही पॉइंट से आपको आंसर कर देना है बहुत सिंपल तरीके से. तो क्या किया था उन्होंने? टेलीमेडिसिन एंड वेलनेस प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे वहां. सो क्या बोलेंगे? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. By introducing value-added services like telemedicine and the wellness program. So this is directly taken from the case, है ना? Mentioned है यहाँ. वो क्या कह रहे हैं? So this is it. They proactively recognize the constant innovation that could disrupt their area of expertise, and to save from that, they introduced value-added offerings such as telemedicine and the wellness program. So straight away from case, you can solve this question. इसमें आपको कुछ भी नहीं है. Number 3. Why is the McKinsey 7S model significant in Swasth strategic management approach, and which element of the model ensure a holistic alignment of their strategy? कौन सा एलिमेंट जो है होलिस्टिक अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ? तो हमने देखा था कि केस में मैकिन्से के सातों एलिमेंट का रेफरेंस आया है. सो हमें ऑल एलिमेंट्स कहाँ दिख रहे हैं? देखो, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाइल एंड स्टाफ. So C is the correct answer. So it ensure a comprehensive alignment of strategy, structure, system, shared value, skill, style and staff. क्योंकि सातों वैल्यू के कॉम्प्रिहेंसिव अलाइनमेंट की हम बात कर रहे थे. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं. तो ये भी एक तरह का सवाल ही पूछा जा रहा है और फिर ये भी एक तरह का सवाल ही पूछा जा रहा है. तो ये फ्रेमिंग का आइडिया है या फ्रेमिंग का इशू आप कह सकते हो. अदरवाइज ये आपसे पूछ रहा है कि किस एलिमेंट, which elements of the model ensure a holistic alignment of their strategy. हम बोलेंगे all 7 elements as referred in the case. Question number 4. Why is the focus on local operations essential for Swasth in context of their long-term objective? And how does it contribute to their overall strategy?
तो लोकल ऑपरेशंस पे जो फोकस करने की बात करी गई है, व्हाई दैट इज एसेंशियल फॉर स्वास्थ्य, राइट, एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो हमने क्या कहा कि हम क्या कह रहे थे, आउटकम में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, टेंजिबल आउटकम। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इट ट्रांसलेट्स द ऑर्गेनाइजेशंस विजन इनटू टेंजिबल आउटकम्स एंड अलाइंस विद देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव स्ट्रेट अवे फ्रॉम द सिनेरियो। कहां से उठ के आ जा रहा है, सिनेरियो से ही उठ के आ जा रहा है। ये चारों क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सिनेरियो से सॉल्व हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए सिनेरियो की जरूरत ही ना हो, कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व हो जाए, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है तो सिनेरियो को हमेशा आपको प्राइम इंपॉर्टेंस देना होगा। आपने देखा इस क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन आपके सिनेरियो से ही सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट वहां से लाइन उठ के आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द केस टॉक्स अबाउट स्क्रूटनी ऑफ एवरी फैसेट्स ऑफ द हेल्थ केयर जर्नी and emphasizes the fact that people of the organization play a pivotal role in this journey. Correct? Based on your reading, people के importance को उन्होंने highlight किया था, correct? उसको भी हमने underline किया था। Based on your reading, which level of management has the most crucial part to play here to ensure the sense of customer first is imbibed in the organization? अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि which level of the management has the most crucial part to play here to ensure the sense of customer first is imbibed in the organization. ये फिलॉसफी है कंपनी का कस्टमर फर्स्ट। तो कस्टमर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में गेट इम्बाइब्ड फुल्ली, इसमें किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्रिटिकल रोल होगा, दैट व्हाट दे आर आस्किंग हियर। सो अब एक बात तो समझ सकते हो ना कि व्हेन वी फ्रेम पॉलिसी तो दैट इज समथिंग विच इज कंसर्न्ड विद द टॉप मैनेजमेंट, बट जब उसके एग्जीक्यूशन का सवाल आता है या उसके एप्लीकेशन टू कंपनी का सवाल आता है तो फिर बिजनेस लेवल इसमें अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। यहां सवाल यह है कि जो कस्टमर फर्स्ट का जो सेंस है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्बाइब होगा, इसमें किस लेवल का सबसे ज्यादा रोल होगा। तो आंसर इज मिड मैनेजमेंट। सो मिड मैनेजमेंट इज योर करेक्ट आंसर। जो आपके डिविजनल मैनेजर्स हैं who have the responsibility of translating strategy to real time objectives, यही स्ट्रेटजी को रियल टाइम ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट करते हैं, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर, राइट, दैट द कस्टमर फर्स्ट इज इम्बाइब्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, बी, करेक्ट। ये थॉट आता कहां से है, तो दैट इज समथिंग विच इज कंसर्न विद द टॉप लेवल, बट इम्बाइब करने की बात हो रही है तो कहां से होगा भाई, मिड लेवल से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, इन द फियर्सली कॉम्पिटिटिव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सो कौन सा इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। Zing is the brand. A promising newcomer set out a strategic journey with ambitions of making a substantial impact. Recognizing the significance of a robust distribution network. Distribution network की importance को यहाँ highlight किया गया है। Zing forged partnership with established dealership. इन्होंने क्या किया, established dealership के साथ partnership किया because they understand the role of distribution network in automotive sector, offering them attractive margins. This strategic move significantly enhanced Zing's reach with a presence in 80% of the nation's dealership by 2022, expanding its coverage significantly. So पहले पैराग्राफ में बेसिक इंट्रोडक्शन है भाई, Zing एक ऑटोमोटिव कंपनी है, जो ऑटोमोटिव कंपनी है तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रही होगी, और इन्होंने मेजर इंपैक्ट लाने के लिए क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के इंपॉर्टेंस को समझते हुए जो स्टैब्लिश्ड डीलरशिप्स थे उनके साथ पार्टनरशिप करी, राइट, ताकि उनको एक्सेस मिल सके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, और इसका उन्हें फायदा भी मिला। टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, Zing adopted two key strategies. Firstly, they prioritized product design, investing heavily in aesthetics and incorporating innovative features and environmentally friendly technologies. तो इन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट करना शुरू किया। डिफरेंशिएशन का आधार क्या हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन का। दे इन्वेस्टेड हेवीली इन एस्थेटिक्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव फीचर्स एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, राइट। This focus on design led to their vehicle receiving excellent review and achieving an impressive 15% year-on-year growth in sales. So that's how they differentiated first. Secondly, Zing implemented switching costs to discourage customers from switching to other brands. Now we know that ये करना होता है कंपनीज को, that you have to raise the switching cost ताकि कस्टमर आपको स्विच करके कंपीटिंग ब्रांड के पास ना जाए।
जिंग ने ऐसा ही किया। तो जिंग ने क्या किया, स्विचिंग कॉस्ट को रेज किया टू डिस्करेज कस्टमर्स फ्रॉम स्विचिंग टू द अदर ब्रांड। द व्हीकल फीचर्ड ब्रांडेड सॉफ्टवेयर making it both expensive and cumbersome for customer to transition to alternative brands. This strategic move effectively protected Zing's market share. तो दो चीजों की बात करें, फर्स्ट दे हैव डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन बेटर डिजाइन, एस्थेटिक्स, फीचर्स एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, एंड सेकंड उन्होंने स्विचिंग कॉस्ट रेज किया बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, ब्रांडेड सॉफ्टवेयर्स, एंड बाय and of course they raise the switching cost. As a result, customer won't be able to switch. Zing's overreaching goal was to position itself as a premium automotive brand, blending luxury with sustainability. However, their execution fell down as they challenged with maintaining consistent quality and services. इनके execution में problem आया है, किसकी वजह से? Because इनकंसिस्टेंसी आई किसमें, क्वालिटी एंड सर्विसेज लेवल में, रिजल्टिंग इन मिक्स्ड कस्टमर रिव्यूज, जिसकी वजह से कस्टमर रिव्यू मिक्स होना शुरू हुआ। मिक्स्ड कस्टमर रिव्यू का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज। डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट, जिंग्स डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फेल शॉर्ट ड्यू टू इशू विद द इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विसेज, है ना। सो जिंग का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, फेल होने लगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विस था। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ एंड डिक्लाइनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स tarnished their brand image, leading to stagnating sales. This failure to deliver on their brand promise proved to be a significant setback. As Zing's reputation suffered from execution failures, securing additional fund for international expansion became challenging. Consequently, they made the difficult decision to postpone their global ambitions for the next 5 years, focusing instead on stabilizing their finances and rebuilding their brand image. In summary, Zing's strategic journey illustrates the importance of not only crafting a compelling differentiation strategy, but also executing it flawlessly. In the competitive automotive landscape, maintaining consistent quality and service is paramount to the sustaining brand loyalty and achieving long-term success. So, ये जो है आपका केस, वो किस चीज की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, जब आप कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, सपोज यू हैव अ वेरी साउंड स्ट्रैटेजी, तो उसके साथ साथ एक्सेलेंट इंप्लीमेंटेशन भी होता है, होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलता है। हमने देखा इनके केस में कि दे हैव डिफरेंशिएटेड देयर प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स दे हैव रेज्ड स्विचिंग कॉस्ट, बट एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी नहीं रही क्वालिटी एंड सर्विस में, जिसकी वजह से उनकी सेल डिक्लाइन होने लगी, और वो जो इंटरनेशनलाइज होना चाह रहे थे वो भी उन्हें रोकना पड़ा ड्यू टू लैक ऑफ फंड हियर। तो दिस इज योर सिनेरियो। अब इसके आधार पे क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट की स्ट्रेटेजिक अप्रोच डिड जिंग यूज टू एक्सपैंड इट्स मार्केट प्रेजेंस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री? तो जिंग ने किसका इस्तेमाल किया था? तो हमने क्या कहा कि जिंग ने इस्तेमाल किया था किसका, मार्केट प्रेजेंस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, किसका, इनोवेशन एंड डिजाइन का, इनोवेशन एंड डिजाइन का। तो ये स्ट्रेट अवे आप कहां से उठाओगे, ये केस से ही आपको उठाना होगा, है ना। सो आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइन। यहां कॉस्ट लीडरशिप या न्यू इंटरनेशनल मार्केट में तो वो एंटर ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं था, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन का कोई जिक्र नहीं है, कॉस्ट लीडरशिप की बात नहीं हो रही है। तो प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइन के आधार पे वो अपने मार्केट प्रेजेंस को, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, हाउ डिड जिंग प्रोटेक्ट इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स? कॉम्पिटिटर से कैसे इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया था? तो हमने कहा सर इन्होंने स्विचिंग कॉस्ट रेज किया। दो चीजों की हम बात कर रहे थे वहां, स्विचिंग कॉस्ट को रेज करना, और उन्होंने सॉफ्टवेयर्स यूज किए, ब्रांडेड एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स, जिसकी वजह से कस्टमर के लिए कंबरसम हो गया दूसरे ब्रांड पे स्विच करना। स्विचिंग कॉस्ट क्या था, हाई था। सो ब्रांडेड सॉफ्टवेयर्स एंड द स्विचिंग कॉस्ट इज योर करेक्ट आंसर, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द केस सिनेरियो। व्हाई डिड जिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉल शॉर्ट इन द मार्केट? तो इनकी स्ट्रैटेजी क्यों फेल होने लगी? डायरेक्ट फ्रॉम द केस सिनेरियो, इनकी स्ट्रैटेजी फेल होने लगी क्योंकि क्वालिटी एंड सर्विस में कंसिस्टेंसी नहीं थी, है ना, जिसकी वजह से मिक्स्ड रिव्यू आने लगा। आप ऐसे सोचो कि किसी एक कस्टमर के पास जो जा रहा है वो क्वालिटी एंड सर्विस जो प्रॉमिस किया गया है उसके हिसाब से प्रोडक्ट जा रहा है, किसी दूसरे का कस्टमर के पास जो जा रहा है उसमें वो क्वालिटी एंड सर्विस मेंटेन नहीं है। इसका परिणाम ये होगा कि मिक्स्ड रिव्यूज आने शुरू हुए और उनका सेल क्या होने लगा, स्टैग्नेंट होने लगा। सो हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विसेज, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विसेज। नंबर 4, फॉर्जिंग पार्टनरशिप विद एस्टैब्लिश्ड डीलरशिप। पहले पैराग्राफ में हमने देखा था
कि जिंग ने स्टैब्लिश डीलर्स के साथ पार्टनरशिप किया ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक्सेस मिले, और उनको मिला भी, और इसका उन्हें फायदा भी मिला। टू इनहांस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। अब ये जो पार्टनरशिप उन्होंने किया था डीलरशिप के साथ, ये किस लेवल पे आप इसको रख सकते हो? तो आंसर इज व्हाट? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। ये बिजनेस लेवल का स्ट्रैटेजी है। बिजनेस लेवल पे आप इस तरह के पार्टनरशिप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, एज सिंपल एज इट इज। हाउ डिड जिंग इनिशियली एक्सपैंड इट्स मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में आप जानते हो स्ट्रैटेजिक 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल। सो हमें नया बिजनेस में एंटर करना है, कहां होगा भाई? सो कॉर्पोरेट लेवल पे। हमने कहा प्लांट लोकेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करेंगे, प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, रॉ मटेरियल का कैसे सप्लाई होगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं बिजनेस लेवल पे। फिर आता है फंक्शन लेवल, जहां हम डे टू डे ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो यहां हमारा आंसर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि यहां डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्रिएट करने की बात की जा रही है, उसके लिए पार्टनरशिप की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ डिड जिंग इनिशियली एक्सपैंड इट्स मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस द नेटवर्क? तो लोकल डीलरशिप के साथ पार्टनरशिप करके शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया। तो पार्टनरिंग विद एस्टैब्लिश्ड डीलरशिप। तो इसके सिनेरियो के भी पांचों क्वेश्चंस डायरेक्ट सिनेरियो से क्वेश्चंस हैं। तो सिनेरियो को जब आप पढ़ते हो तो उसका एक क्रक्स आपके दिमाग में उसी समय आ जाना चाहिए, तो प्रॉपर्ली ट्रांसलेटेड होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि ये केस सिनेरियो क्या बातें कर रहा है। तो इससे क्वेश्चन को डील करने में आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैफे डिलाइट, अ thriving restaurant chain known for its unique blend of Australian and Indian culinary experiences, embarked on a remarkable journey from its humble beginning as a small cafe in Australia to becoming a renowned player in the Indian restaurant industry. ठीक है, कैफे डिलाइट, इससे हमें मतलब है, सिर्फ नाम है इसका। This case study digs into the strategic decision and market dynamics that fueled Cafe Delight growth, highlighting its transition from a single cafe in Powai, Mumbai to a flourishing chain with a presence in 5 cities and over 25 stores. 5 cities, 25 stores. याद रखना. It explores how Cafe Delight effectively leveraged social media and adapted its pricing strategy to compete with the global brand while maintaining a healthy profit margin. ये ग्रोथ जर्नी है कैफे डिलाइट का, कि किस तरह से वो 5 शहर में इनका प्रेजेंस हो गया, 25 स्टोर्स हो गए इनके पास, और किस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया को लीवरेज किया और क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज किया। आगे दिखेगा आपको ये सारी चीजें। इन 2005 Cafe Delight was founded in Melbourne, Australia by a passionate entrepreneur with a vision to bring the flavors of Australian and India together. The first cafe established in Powai, पहला कहां खुला? Powai में, in Mumbai, received accolades for its unique menu, blending Australian coffee culture with the Indian culinary tradition. Over the course of 5 years, Cafe Delight expanded to 3 stores in Mumbai, driven by exceptional mouth publicity, customer loyalty and the consistent quality. 5 साल में मुंबई में इन्होंने 3 स्टोर ओपन कर दिया। किस आधार पे भाई? तो माउथ पब्लिसिटी और कस्टमर लॉयल्टी के आधार पे। माउथ पब्लिसिटी हो रही थी जिससे इनका कस्टमर बेस बढ़ रहा था, तो इन्होंने 3 स्टोर खोल दिए मुंबई में, राइट, इन द फर्स्ट 5 years. As the social media landscape evolved, Cafe Delight recognized the power of online platform in reaching wider audience. By effectively utilizing social media and online marketing, Cafe Delight expanded its presence to 5 cities across India. तो अब सोशल मीडिया को यूज करके ये क्या कर रहे हैं? 5 cities across India and established over 25 stores. सोशल मीडिया को के पावर को इन्होंने हार्नेस किया, ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज किया, और 25 स्टोर्स इन्होंने खोल दिया इन इंडिया. Customer engagement through social media platform enabled the brand to create a strong and vibrant community, driving organic growth. A Cafe Delight customer-centric approach involved continuously evolving its menu to cater to the changing tastes and dietary preferences of its patrons. By understanding the evolving needs of its customers, Cafe Delight could offer personalized menu items, seasonal specials, and dietary alternatives. This approach created a sense of loyalty and engagement among customers, strengthening the brand's appeal. Not just customers, but high-powered, low-interest stakeholders, including regulatory authorities, were addressed with careful compliance and adherence to the industry standards. सिर्फ कस्टमर ही नहीं, बल्कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो रेगुलेटर्स हैं, इनको भी क्या किया इन्होंने?
केयरफुली डील किया है with the compliance and adherence to the industry standards. Low power, high interest stakeholders like potential customers and local communities were engaged through targeted marketing campaigns and community involvement initiatives. तो जो लो पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पोटेंशियल कस्टमर्स है, लोकल कम्युनिटीज हैं, इनको भी इन्होंने क्या किया, इंगेज किया है थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग. दिस मेटिकुलस स्टेक होल्डर एनालिसिस allowed Cafe Delight to build and maintain a strong relationship with each group, effectively managing their influence and impact on the brand. तो ये पैराग्राफ बात कर रहा है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की. So they have identified and managed their stakeholder carefully. अब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए so we have a Mendelow's matrix, यानी कि कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आपको Mendelow's matrix से क्वेश्चन दिखेगा. ये पूरा पैराग्राफ ही Mendelow's matrix पे. So this is how you will identify कि भाई कहां से क्वेश्चन बनेगा. With its expanding presence and increasing popularity, Cafe Delight underwent a shift in its pricing strategy. अब इन्होंने अपने pricing strategy में shift लाया. It transitioned from a pocket-friendly pricing model to a skimming strategy. Pocket-friendly pricing model का मतलब क्या हुआ कि low pricing strategy थे. इससे ये move करके जाते हैं skimming strategy पे. Skimming pricing का मतलब होता है जब आप deliberately price को high रखते हैं ताकि आप customer loyalty का फायदा उठा सके. Capitalizing on its unique blend of Australian and Indian flavor to position itself as a premium restaurant, Cafe Delight faced stiff competition from global brands entering the Indian market, but maintained a profit margin of approximately 30% through menu engineering and targeted pricing. In one of its kind, using strategic tools enabled Cafe Delight to identify and act on opportunities while mitigating threats, contributing to long-term success in the highly competitive restaurant industry. So this is the story of the Cafe Delight. है ना, एक स्टोर से शुरू किया इन्होंने और 25 स्टोर्स ओपन कर दिए 5 सिटीज ऑफ इंडिया में. शुरू में इन्होंने 5 मुंबई में 3 स्टोर्स ओपन किए माउथ पब्लिसिटी और कस्टमर लॉयल्टी की मदद से, राइट. फिर उन्होंने सोशल मीडिया को हार्नेस किया और पूरे इंडिया में 5 सिटीज में नाउ दे हैव 25 स्टोर्स. कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है इनका, राइट. और डिफरेंट मेनू वगैरह, सीजनल स्पेशल्स वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं. हाई पावर लो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स जो है इनके, जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनको भी सेटिस्फाई रखा एंड लो पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर को भी एंगेज किया. तो प्रॉपरली इन्होंने दे आइडेंटिफाइड द स्टेक होल्डर एंड मैनेज देम, और फिर वो पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग से स्किम प्राइसिंग की तरफ बढ़े ताकि वो अपने ब्रांड को एज अ प्रीमियम ब्रांड एस्टैब्लिश कर सके. दिस इज द सिनेरियो. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1. कैफे डिलाइट इफेक्टिवली लेवरेज्ड सोशल मीडिया and adapted its pricing strategy as it stepped into which phase of business life cycle of operations. So, presence in 5 cities and there are 25 stores. तब जाके उन्होंने अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी को एडजस्ट किया. पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग से स्किम प्राइसिंग पे गए. तो पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग से स्किम प्राइसिंग पे गए तो वो ऑलरेडी किस फेज में थे, ग्रोथ फेज में थे, राइट. इंट्रोडक्शन उनका हुआ था मुंबई पवई में जब उन्होंने पहला अपना रेस्टोरेंट ओपन किया. फिर वर्ड ऑफ माउथ को उनका जब हुआ तो उन्होंने 3 रेस्टोरेंट और ओपन कर दिए और फिर सोशल मीडिया को हार्नेस किया और डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया में 25 स्टोर्स उनके बन गए, राइट. उसके बाद उन्होंने अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी को शिफ्ट किया, यानी कि दे आर इन ग्रोथ. वो ऑलरेडी किसमें है, ग्रोथ स्टेज में है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रोथ स्टेज. हम जानते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एजिंग या डिक्लाइन. ये क्लियर कट केस है किसका, ग्रोथ स्टेज का. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. व्हाट स्टेक होल्डर ग्रुप डिड कैफे डिलाइट एंगेज टू टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स. तो टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स में एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव्स, यहां इसका इस्तेमाल किया था उन्होंने जो कस्टमर्स थे और जो लोकल कम्युनिटी था उनको इंगेज करने के लिए. तो वो क्या थे, लो पावर हाई इंटरेस्ट कैटेगरी में उसको डाला गया था. तो 2 का जिक्र है, ये डायरेक्ट केस से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखो, एक का जिक्र है हाई पावर लो इंटरेस्ट, तो ये तो आपके रेगुलेटर्स थे, और दूसरा है लो पावर हाई इंटरेस्ट, इसमें आपका लोकल कम्युनिटी आ रहा था. सो लो पावर हाई इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लो पावर हाई इंटरेस्ट. सो सी इज द करेक्ट आंसर, लो पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स. इसमें आ गए आपके कस्टमर्स एंड कम्युनिटीज. इसी के अंदर क्या आ गया, आपके कस्टमर्स एंड कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज जो थे दैट इज कवर्ड. उनको एंगेज करने के लिए हमने टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन का इस्तेमाल किया था. नंबर 3, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब कैफे डिलाइट इनिशियल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी
when it expanded from 1 cafe to 3 in Mumbai, right? तो अब ऑप्शंस देखो, एग्रेसिव प्राइस रिडक्शन ऐसा नहीं हुआ था, ये तो उन्होंने बाद में जाके किया था जब वो ग्रोथ स्टेज में चले गए थे। लिवरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, यस। तो हमने कहा था जब मुंबई में उन्होंने पहला स्टोर खोला तो उसके बाद चूंकि उनका इंडियन और ऑस्ट्रेलियन कुलिनरी का मिक्सचर वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो देयर वर वैरायटी फॉर द पैटर्न्स। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, वर्ड ऑफ माउथ हुआ, कस्टमर लॉयल्टी बनी, और इसी के आधार पे फिर उन्होंने अदर स्टोर्स ओपन किए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लिवरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, एट विच लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट does Cafe Delight's transition from pocket friendly pricing model to a skimming strategy fit? So pricing strategy कहां डिसाइड होगी, बिजनेस लेवल पे डिसाइड होंगी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी बिजनेस लेवल पे डिसाइड होंगी, राइट? हमें बिजनेस में जाना है, ये कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। देन वी हैव द बिजनेस लेवल डिसीजन। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस लेवल डिसीजन। तो क्लियर कट केस है ये किसका, बिजनेस लेवल का। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, बी। फिफ्थ, what type of strategy did Cafe Delight use to differentiate itself from the competitors in the Indian restaurant industry? So what type of strategy did Cafe Delight use to differentiate itself from competitors? किस तरह की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने आप को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए? तो हम क्या बोलेंगे कि सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कुलिनरी प्रोवाइड करने का मतलब है सीधा सीधा दैट दे आर डिफरेंशिएटिंग देमसेल्फ। तो ये है तो डिफरेंशिएशन, नो डाउट। और कैसा डिफरेंशिएशन है, फोकस्ड डिफरेंशिएशन है। तो ऑप्शन है हमारे पास बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। नेहा राव, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डेफ टेक्नोलॉजीज, is renowned for her technological insight and visionary leadership style. She cultivates a culture of she cultivate a culture of collaboration, continuous learning and innovative problem solving. देखो, collaboration, continuous learning, innovative problem solving, encouraging employees to think outside the box and embrace new challenges. बताओ कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? आपको दिख रहा है ना, ये लीडरशिप स्टाइल बता रहे हैं पहले पैराग्राफ में। हम कहते हैं सर ट्रांसफॉर्मेशनल है ये, और लीडरशिप स्टाइल दो तरह के होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल। किस तरह का लीडरशिप स्टाइल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल हो गया। हर एक्सेप्शनल एबिलिटी टू फोरसी टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स एंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स मार्केट डायनामिक्स हैज प्रोपेल्ड डेफ टेक्नोलॉजीज टू इंप्रेसिव ग्रोथ ओवर द पास्ट डिकेड, राइट? सो ये पहला पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है, लीडरशिप की बात कर रहा है। तो एक क्वेश्चन तो लीडरशिप का दिखेगा ही दिखेगा हमें। नेक्स्ट आ जाओ। स्नेहा स्टार्टेड डेफ टेक्नोलॉजी इन 2010 एज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म with a vision to transform Def Technology into a leading tech company. She initially focused on developing custom software solutions for local businesses. तो शुरू में क्या कर रहे हैं वो, कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना रहे हैं लोकल बिजनेसेस के लिए। However, intense competition and limited market demand led to financial difficulties. Undeterred, Sneha pivoted the business towards developing cloud-based solution. तो इनको पिवट करना पड़ा। क्यों पिवट करना पड़ा? क्योंकि उनको लोकल बिजनेस जो लोकल बिजनेस के लिए वो सॉल्यूशंस बना रहे थे, यहां बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उन्होंने फेस करना शुरू किया। तो वो शिफ्ट किए, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस बनाने लगे। लिवरेजिंग द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट अलोंग विद एग्रेसिव मार्केटिंग helped Def Technologies capture a significant market share and become a leader in the cloud services, setting new industry standards. In 2015, Sneha's brother Raj joined the company and together they crafted an ambitious expansion strategy. तो राज की ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या प्लान किया, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को प्लान किया। डेफ टेक्नोलॉजीज एंटर्ड द ग्लोबल मार्केट पार्टनरिंग विद, यानी कि कहां गए वो, ग्लोबल मार्केट में एंटर किए, पार्टनरिंग विद इंटरनेशनल टेक फर्म टू लॉन्च अ न्यू लाइन ऑफ एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सो एक नया वर्टिकल लॉन्च हुआ इनका, एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, राइट? दिस वेंचर वाज हाईली सक्सेसफुल, establishing Def Technologies as a global brand and key player in the cybersecurity industry. Raj then led the company's diversification into healthcare sector. Further इन्होंने diversify किया किसमें, healthcare sector में diversify किया with a new brand MedTech Solutions. Recognizing the potential for technology to revolutionize healthcare, Sneha and Raj focused on developing affordable telemedicine platform and AI-driven diagnostic tools. Their approach disrupted the market, providing high quality healthcare solutions at lower costs and gaining widespread trust. High quality healthcare solution at lower cost. High quality healthcare solution at lower cost.
है ना। अब इसको खास करके हाईलाइट कर लेना, पता है इसको खास करके क्यों हाईलाइट कर लेना, क्योंकि हाई क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट की बात की जा रही है। और अगर आप हाई क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट की बात कर रहे हो ना, तो व्हाट स्ट्रेटजी इज बीइंग रेफर्ड, जब तक मैं केस पढ़ रहा हूं तब तक सोचना है इस पे, हाई क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट, मतलब ये नहीं कि फिर आगे सोचना बंद करके सोचने लगना, पैरेलल में दो चीजों को सोच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गेनिंग वाइड स्प्रेड ट्रस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट अलाइक. MedTech solutions experienced rapid growth, especially during the COVID-19 pandemic, as demand for remote healthcare services surged. At the beginning of 2023, DevTech launched another new business, Green Tech Innovation. फिर से इन्होंने एक नया बिजनेस लॉन्च किया Green Tech Innovation के नाम से, to address environmental challenges through technology. DevTech continues to explore new opportunities and ventures to stay at the forefront of the tech industry. अब this is your scenario, है ना। समराइज करें तो देखो, स्नेहा ने स्टार्ट किया था कंपनी को, डेवटेक को, राइट। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है इसका। इन्होंने जब स्टार्ट किया तो शुरू में ये लोकल बिजनेस के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर्स बना रहे थे, लेकिन कंपटीशन की वजह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई, तो ये पिवट किया किधर, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस पे, और एग्रेसिव मार्केटिंग की मदद से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। फिर राज ने ज्वाइन किया बिजनेस को, और फिर उन्होंने एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया, और ग्लोबल मार्केट में एंटर किया, वहां के इंटरनेशनल फर्म्स के साथ टाई अप किया, और एक न्यू लाइन ऑफ एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन लॉन्च किया। फर्दर राज ने डाइवर्सिफाई किया कंपनी को, और हेल्थ केयर सेक्टर में एंटर किया इन्होंने, जहां ये अफोर्डेबल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म एंड एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सोल्यूशंस लोअर कॉस्ट पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इन 2023 डेवटेक ने फर्दर डाइवर्सिफाई किया और ग्रीन टेक इनोवेशंस नाम की कंपनी को लॉन्च किया, जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करने में मदद करती है थ्रू टेक्नोलॉजी, राइट। दिस इज योर सिनेरियो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। स्नेहा राव's विजन टू ट्रांसफॉर्म डेवटेक इनटू अ लीडिंग टेक कंपनी इलस्ट्रेट विच टाइप ऑफ इंटेंट। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो स्नेहा राव का विजन है कि वो डेवटेक को एक लीडिंग टेक कंपनी बनाना चाहती है, सो कौन सा इंटेंट है। जब हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल पे हमारे पास इंटेंट होता है इन फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन, बिजनेस लेवल पे इंटेंट होता है इन फॉर्म ऑफ बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, और फंक्शन लेवल पे इंटेंट होता है इन फॉर्म्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इंटेंट जो है ये कौन सा इंटेंट है, तो दिस इज नथिंग बट द विजन। क्वेश्चन नंबर 2, स्नेहा लीडरशिप स्टाइल, देखो आ गया ना क्वेश्चन, विच प्रमोट्स कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर कोलैबोरेशन है, कंटिन्यूअस लर्निंग है, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। कैसा लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शनल के बारे में प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम कई बार बात कर चुके हैं, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, व्हेन डेवटेक एक्सपैंडेड इनटू ग्लोबल मार्केट with AI driven cyber security solution, which Porter's 5 forces was most likely mitigated by forming partnership with international tech firms. जब हम ग्लोबल मार्केट में एंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है, वी हैव टू फेस लॉट ऑफ एंट्री बैरियर्स, हमें एंट्री बैरियर्स को फेस करना होता है। जब इन्होंने AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया, तो इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल टेक फर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया, ताकि उनको वो बैरियर को क्या कर सके, वो डील कर सके। तो यहां अगर मैं माइकल पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल को अगर हम रेफर करें तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए था, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो ये जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस फैक्टर से रिलेटेड जो बैरियर होता है, उस बैरियर को ये एड्रेस कर पाए बाय पार्टनरिंग विद द इंटरनेशनल टेक फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, बाय एंटरिंग द ग्लोबल मार्केट एंड लॉन्चिंग AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, डेवटेक परसूड विच एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फ्रॉम एनसॉफ्ट प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स के हिसाब से देखें तो कौन सा स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज किया, तो हम कहते हैं सर देखो हो क्या रहा है कि दे हैव लॉन्च्ड AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट, इन ग्लोबल मार्केट, सो मार्केट इज आल्सो न्यू। सो दिस इज क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। हम जानते हैं जब प्रोडक्ट भी नया हो और मार्केट भी नया हो तो उस कंडीशन में उसे हम डाइवर्सिफिकेशन के कैटेगरी में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, MedTech solutions focus on developing affordable telemedicine platforms and AI-driven diagnostic tools reflect which of the following competitive strategies? अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी, राइट। और देखो जो आपने पैराग्राफ में हाईलाइट किया था ना, उसी के आधार पे क्वेश्चन है, और मुझे बस ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी करनी है। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, जो केस सिनेरियो से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उन्हें डील करना तो कोई भी कर लेगा,
जो जनरल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो भी डील हो जाते हैं, जो ट्विस्टेड होते हैं वहां डिफिकल्टीज आती हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि मेडटेक सॉल्यूशन फोकस ऑन डेवलपिंग अफोर्डेबल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। जैसे अफोर्डेबल आया तो आपके दिमाग में आएगा कॉस्ट लीडरशिप एंड एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक टूल रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। और यहां के आधार पे अगर आप आंसर कर दोगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू गो बैक टू द केस और जरा ध्यान से देखो उस पैराग्राफ को फिर से, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि स्नेहा एंड राज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अफोर्डेबल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स एंड एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक टूल्स। अफोर्डेबल वर्ड यूज किया इन्होंने, लो कॉस्ट तो वैसे भी नहीं कह रही है। देयर अप्रोच डिसरप्टेड द मार्केट प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सोल्यूशन एट अ लोअर कॉस्ट। तो हाई क्वालिटी बट लोअर कॉस्ट, ये कब होता है आप याद करो, इसी को हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। और हमने कहा था जब हम दोनों का मिक्सचर यूज करते हैं सर, डिफरेंशिएशन मतलब हाई क्वालिटी, व्हेन वी आर ऑफरिंग अ क्वालिटी एज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, राइट, बट वी कीप आवर प्राइस एट लोअर साइड, तो दैट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी। और बेस्ट कॉस्ट को परस्यू करने के दो तरीके होते हैं, कंपेरेबल क्वालिटी लोअर प्राइस या कंपेरेबल प्राइस हायर क्वालिटी। तो यहां हमें क्या दिख रहा है, हाई क्वालिटी है लोअर प्राइस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लियर कट केस है किसका, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी का। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ही आपको क्या रहना होता है, केयरफुल रहना होता है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15। Kriti Private Limited has been importing French gourmet cheese under the brand name of Fromage since 2017. The company was amongst the first in India to introduce innovative unbreakable cheese packaging. ठीक है? Their affiliate, a French company owning Fromage, had entered into a progressive deal wherein the products would be sourced to India, where their logistics and all marketing expenditure would be covered by them. Now, this question is the same as was your question number 10, right? इटालियन वहाँ इटालियन कंपनी का जिक्र था, वहाँ इंडियन और इटालियन के बीच का केस सिनेरियो था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ कुछ डिस्प्यूट भी हैं आंसर में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। However, customer management and nationwide distribution would be taken care by the Kriti Private Limited. So, जो nationwide distribution है और जो customer management है, that will be taken care by the Kriti Private Limited. आपको याद आ रहा होगा, it's the same case. This required an English-speaking skilled workforce. Language भी same है, which has been a constant challenge for the company in India. Language भी same है, everything is same in fact. The owner of the Kriti Private Limited have been regularly attendees at industry relevant conclaves, but both national and international. Leaders of the company are passionate readers of business magazines. Following that, it was observed that the recent sentiment of the country towards vocal for local could disrupt their French brand marketability. An extraordinary meeting was set up and the steps ahead were planned. आपको याद होगा, यहां से हमने देखा था स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। क्या देखा था, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। ओके, तो जब हमने इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन को देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, जो सिमिलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, यस 10 ही था शायद, तो वहां उन्होंने आंसर में इसका आंसर कुछ और दे रखा था, राइट। तो उसको हमने करेक्ट किया था। तो यहां देख लेते हैं क्या होगा। द आउटकम ऑफ द मीटिंग वाज टू पार्टनर विद द लोकल प्रोड्यूसर ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन चीज। किसके साथ पार्टनरशिप किया इसने, लोकल प्रोड्यूसर के साथ, वोकल फॉर लोकल को डील करने के लिए। For this 7 state governments were approached, same चीज है। The team was successful in taking contract from all the government departments of these 7 states and could position themselves fairly in the market. To fund this new investment, they have planned to slowly sell off their French business assets as well as the brand to probable buyers. तो ये क्या था, this was the divestment. ये क्या हो गया मेरा, ये divestment हो गया। This timely shift is proving to be a game changer for the company, and the leadership is quite happy with better than before earnings and a much greater response from the customers. They find it easier to operate with domestic producers and vendors, and a sense of patriotism is instilled in the consumer's mind, right? It's the same scenario. Question देखते हैं direct. Question number 1. Which of the following action taken by Kriti Private Limited is the example of proactive strategy? So proactive strategy क्या था, तो responding to vocal for local sentiment by partnering with the local cheese producer. जो इन्होंने vocal for local के साथ tie up किया, वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच था उनका। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल डिड द ओनर एंड लीडरशिप ऑफ कृति प्राइवेट लिमिटेड
deployed that eventually turned out to be one of the most effective strategic decision of the company. So यहाँ क्या आंसर हो जाएगा हमारा? स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस. क्या बोल देंगे हम? स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस. हम जानते हैं कैजुअल ब्राउजिंग ऑफ एनवायरमेंट स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस में ही होता है, जहां डिफरेंट मीटिंग्स के थ्रू, सोशल गैदरिंग्स के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू वी गेट इन्फॉर्मेशन एंड समटाइम्स वी गेट सच इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट आवर स्ट्रेटजी एज वेल. यहाँ वही सीन देखने को मिला है. सो दिस इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस. नंबर 3, वोकल फॉर लोकल is a market sentiment that changed customer preference for the majority of products across all industries. Based on that, Kriti Private Limited gauged the competition it might face in the coming months and agreed to change its own product. Which of the following forces, as per Michael Porter's 5 forces of competitive analysis, is most relevant? तो कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा रेलिवेंट है? तो हमने कहा देखो जो लोकल प्रोड्यूसर थे चीज के, है ना, वो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर थे आपके, राइट. आप क्या कर रहे थे? यहाँ इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, और जो लोकल है उससे आपका फाइट होता है. यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. इसकी बात कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं. सो दैट इज योर आंसर. नंबर 4, which of the following aspect of value chain analysis was the most challenging for Kriti Private Limited at the time of selling the Fromage brand? तो वैल्यू चेन एनालिसिस का कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा फॉर Kriti Private Limited? So here answer is what? Customer service. The customer service को मेंटेन करना, that is going to be challenging, right? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था आपका. क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ. To strategically revamp their business, partnerships were done with the Indian local producers from 7 states, and to fund it, the existing arm of the business was to sold off. Which of the following strategies being applied? Divestment strategy. जो आर्म को बेचा गया उसका मतलब क्या था? डाइवेस्टमेंट था. तो ये क्लियर कट केस है किसका? डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी का. सिंपल क्वेश्चन है, राइट. अब क्वेश्चन नंबर 4 को लेके डिस्प्यूट है, राइट. यहां हमने कस्टमर सर्विस को लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आउटसोर्सिंग को लिया है. तो सवाल आता है सर कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आउटसोर्सिंग को ले या कस्टमर सर्विस को ले? तो आई वुड से कस्टमर सर्विस, राइट, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. और दोनों में से किसी का भी जिक्र केस सिनारियो में नहीं है, ना ही इसमें है ना ही प्रीवियस केस जो सिमिलर केस था उसमें था. तो कस्टमर सर्विस जो है वो सबसे ज्यादा सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो आप इसको लेकर थोड़ा सा क्या रहोगे? केयरफुल रहोगे. क्वेश्चन नंबर 16 देखो. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसी तरह का, इसलिए चिंता मत करो. इकोफोर्ज, a startup specializing in eco-friendly building materials crafted from agriculture waste, entered the highly competitive manufacturing industry with a vision of promoting sustainability. Eco-friendly building material बना रहे हैं ये, right? Agriculture waste से, correct? Despite this innovative approach, the company faced significant challenges as a new entrant, including high production cost, limited market visibility, regulatory hurdles, and fierce competition from established player. So what problem they are facing? The production cost is high, they have limited market visibility, and certainly regulatory hurdles are there. Competition is another problem they are facing. However, through strategic planning and effective execution, Ecoforge successfully navigated these obstacles and positioned itself for sustainable growth. The company leadership recognized the importance of understanding its internal strengths and weaknesses along with external opportunities and threat. किसका रेफरेंस आ गया? SWOT का रेफरेंस आया यहाँ. This analysis revealed Ecoforge's core advantage in sustainability and innovation, contrasted with the scalability issue and market pressure from the cheaper alternatives. Additionally, market analysis uncovered the potential of urban housing project as an opportunity. और अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या है? एक अपॉर्चुनिटी की तरह से यहाँ रिवील हुआ है. while intense competition posed as a significant threat. तो इंटेंस कंपटीशन क्या हो गया? थ्रेट हो गया. तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या बता रहा है आपको? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में. Ecoforge leadership focused on creating unique value proposition by emphasizing its eco-friendly materials. The differentiation helped the company appeal to environmentally conscious builders and developers. To expand its market reach, Ecoforge adopted strategies to deepen its presence in existing market and explore new ones. To expand market reach, Ecoforge adopted strategies to deepen its presence in existing market and explore new one. तो नए मार्केट को एक्सप्लोर करने को क्या कहते हैं? मार्केट डेवलपमेंट कहा जाता है. कंकरेंटली इट एनालाइज्ड, यानी कि ये क्या है मेरा? ये मार्केट डेवलपमेंट है. कंकरेंटली इट एनालाइज्ड द इंडस्ट्री लैंडस्केप and identified the critical influence of regulatory policies and socio-cultural factors shaping consumer preferences. Internally, Ecoforge implemented structural and cultural changes
to enhance its operational efficiency and responsiveness by adopting a SBU model. तो कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? SBU स्ट्रक्चर का रेफरेंस आ गया. The company streamlined its decision-making process, allowing each product line to adapt quickly to the market demands. Recognizing the need for collaborative leadership, Ecoforge CEO Mrs. Aarti Mehra invested in leadership training programs for senior manager. This shifted the company's culture from hierarchical to team-driven, encouraging innovation and cross-functional collaboration. Okay. To enhance its competitiveness, Ecoforge optimized its production and supply chain processes. Supply chain को भी improvise किया है by addressing inefficiencies and partnering with technology providers. These efforts significantly reduced the cost and improved product quality. So they worked on the supply chain as well. तो cost कम किया और अपनी quality को improve किया. Simultaneously, the company pursued green certifications and localized marketing effort to build brand recognition, attracting environmentally conscious clients. Over 3 years, these initiatives enabled Ecoforge to expand into new markets, secure partnership with leading developers, and increase its revenue by 40%. By integrating market analysis, operational improvements, and focus on cost efficiency, Ecoforge transitioned from a struggling startup to a leader in a sustainable building materials, setting a benchmark for innovation and environmental stewardship in the industry. Now, this is your scenario, right? एक बार मैं आपको फिर से बताऊं, ध्यान दो क्या क्या देख रहे हैं हम. Ecoforge क्या है? एक इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल बनाता है एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज करके, राइट? शुरू में प्रॉब्लम्स इनकी क्या रही? इनका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई था, मार्केट विजिबिलिटी लिमिटेड थी, रेगुलेटरी हर्डल्स वो फेस कर रहे थे और कंपटीशन भी उन्हें मिल रहा था एग्जिस्टिंग प्लेयर से. इन सबको बीट करके इन्होंने अपने आप को एक सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव किया. कंपनी का जो लीडरशिप है वो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड, दे डिड द स्वॉट एनालिसिस. तो इस पूरे पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स की, एंड दे डिफरेंशिएट देमसेल्फ. साथ ही साथ टू एक्सपैंड मार्केट रीच, Ecoforge adopted a strategy to deepen its presence in the existing market and explore new ones. तो यहां मार्केट डेवलपमेंट को यूज किया. Concurrently, it analyzed the industry landscape and identified the critical influences of regulatory policies as well and worked accordingly. स्ट्रक्चर को कैसा बनाया? SBU बनाया. अब recognizing the need for collaborative leadership. Now see this, recognizing the need for collaborative leadership, Ecoforge CEO Ms. Aarti Mehra invested in leadership training program senior manager. This shifted the company's culture from hierarchical team-driven, encouraging innovation and collaboration. So hierarchical से किधर मूव कर गए हम? Team-driven पे मूव कर गए. जहां हम बात कर रहे हैं कोलैबोरेशन की, राइट, एंड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं हम. क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन कहां होता है? यानी कि देखो इस पैराग्राफ में क्या इंडिकेट हो रहा है बालक? इस पैराग्राफ में इंडिकेट हो रहा है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. याद करो, जैसे क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन की बात करें तो हम जानते हैं क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन हमारा कहां होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में होता है. वही हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होते हैं, करेक्ट. फिर रिड्यूस्ड कॉस्ट की बात हुई और इंप्रूव्ड क्वालिटी की बात हुई बाय वर्किंग ऑन द सप्लाई चेन. ये आपका सिनेरियो है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1. द SBU मॉडल एडॉप्टेड बाय Ecoforge इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एट विच लेवल. तो SBU मॉडल जो इन्होंने ऑप्ट किया, ये डिसीजन किस लेवल पे लिया जाएगा, राइट? तो हम क्या बोलेंगे सर, ये कैसा डिसीजन है? ये ऐसा डिसीजन है जो कॉर्पोरेट लेवल पे लिया जाएगा. तो जब आप SBU मॉडल को ऑप्ट कर रहे हो, इसका मतलब अपने बिजनेस को स्प्लिट कर रहे हो ना, आप यूनिट्स बना रहे हो. तो ये यूनिट्स बनाने का काम कहां होगा? हमेशा कॉर्पोरेट लेवल पे होगा. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो. Ecoforge strategy of appealing to environmentally conscious builders and developers by emphasizing its eco-friendly materials is an example of which type of generic strategy by Michael Porter. ओके, इको फ्रेंडली मटेरियल है ना. हमने देखा था कि इसमें बहुत क्लियरली इस बात को देखा था कि ये क्या कर रहे थे, बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे थे. तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है. हालांकि ये बिल्डर्स के लिए और जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस बिल्डर्स हैं, जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस डेवलपर्स हैं, उनके लिए है. लेकिन मार्केट साइज को लेके हमारे पास कोई भी जानकारी केस सिनेरियो में नहीं थी. तो हमारा जो अप्रोप्रिएट चॉइस होगा दैट विल बी द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. सो बी इज द करेक्ट आंसर. टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 कहते हैं the case mentions Ecoforge identifying critical influence of regulatory policies and socio-cultural factors shaping consumer preferences. Which strategic analysis framework is the most relevant here? आपके पास 4 ऑप्शन है: SWOT analysis, value chain, PESTEL and ANSOF matrix. हमसे पूछा जा रहा है भाई कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा इस सिनेरियो में, इस केस में. नाउ सी दिस, रेगुलेटरी पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये एनालिसिस हमें किस फ्रेमवर्क में देखने को मिलता है? तो द आंसर इज द पेस्टल.
याद है आपको पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल। तो आपका जो रेगुलेटरी इश्यूज है या तो पॉलिटिकल लीगल में आप उसे रख सकते हो, सोशियो कल्चरल के लिए आपके पास सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट है ही, तो ये दोनों आपको इसी से फाइंड आउट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, पेस्टल एनालिसिस। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इकोफॉर्ज स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन नंबर 4, इकोफॉर्ज स्ट्रैटेजी टू डीपेन इट्स प्रेजेंस इन एग्जिस्टिंग मार्केट and explore new ones correspond to which growth strategy in Ansoff matrix? Now see this, deepen its presence in existing market। जब आप अपने existing market में अपने presence को deepen करते हो तो ये indicate कर रहा है market penetration का। But as I told you कि हमें केस के हिसाब से ही आंसर करना है ना। उसके बाद कह रहा है and explore new ones। तो यहां हमने इस बात को देखा था, क्या कह रहा है ये देखो, स्टेटमेंट ये था, टू एक्सपैंड इट्स मार्केट रीच इकोफॉर्ज एडॉप्टेड स्ट्रेटजीज टू डीपेन इट्स प्रेजेंस इन एग्जिस्टिंग मार्केट। सो दिस इज मार्केट पेनिट्रेशन एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट, दिस इज मार्केट डेवलपमेंट। दोनों की बात की जा रही है, मार्केट पेनिट्रेशन की भी बात की जा रही है और मार्केट डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है। बट जब आप क्वेश्चन को देखोगे वहां देखो कि आपका सेकंड एंड एक्सप्लोर न्यू वंस कॉरस्पॉन्ड टू विच ग्रोथ स्ट्रेटजी, तो आप इस वाले को ज्यादा कंसीडर कर लो। ऑप्शन में इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज हैं, दोनों नहीं है। अगर मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट होता तो वो मेरा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता, बट ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर न्यू वंस हमारा प्रायोरिटी होगा और हम बोल देंगे ये मार्केट डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन डिफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 5, विच की इंडस्ट्री फोर्स एज पर पोर्टर्स 5 फोर्सेस is reflected in EcoForge challenges from cheaper alternatives and intense competition। जब हम cheaper alternatives की बात करते हैं तो alternatives का मतलब क्या हो गया, alternatives का मतलब हो गया substitute। क्या हो गया, substitute। हम cheaper alternatives की बात कर रहे हैं, इसका मतलब set of substitute product होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, set of substitute product। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। Let's go to question number 17। Galaxy Enterprises Limited operates as a diversified conglomerate with a significant presence in various industries, including electronics, packaged food, textiles, heavy machineries, and renewable energy। ये सारे वर्टिकल्स में ये काम कर रहे हैं, है ना। ये डिफरेंट इंडस्ट्री में जो आपका जेल पढ़ते हैं, इसको हम जेल जो है ये डिफरेंट इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं। Leveraging its substantial free reserves of rupees 85,000 crores, GEL has built a strong brand reputation, largely driven by its market leadership across multiple sectors. So these are the industry in which the GEL is operating. In the renewable energy sector, GEL has been the industry leader for over 15 years. क्या ये industry leader है? The division's recent performance has been exceptional. A significant market development occurred when two competitors, Nova Green Energy Limited and Zenith Solar Limited, previously ranked second and third in market share respectively, merged to create a new entity, Synergy Renewables Limited SRL। यानी कि इनके जो कॉम्पिटिटर थे ना, नोवा और जेनिथ, ये दोनों मर्ज हो गए और मर्ज करके इन्होंने एक कंपनी बना दी, सिनर्जी SRL। Following the merger, SRL has claimed the top spot in the market share, intensifying competition. Now see this, ये पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है राइवलरी की बात, है ना। सो राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स, ये किसकी बात कर रहा है, ये राइवलरी अमॉन्ग फर्म्स की बात कर रहा है। अब हुआ क्या कि दो कंपनी जो इसके दो अपोनेंट थे सेकंड और थर्ड प्लेस पे, वो दोनों मर्ज करके उन्होंने एक कंपनी बना दी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि वो नंबर 1 हो गए और आपका जो जेल था वो सेकंड पोजीशन पे खिसक के चला गया। अच्छा, ये क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है कंपटीशन को। सो राइवलरी अमॉन्ग कॉम्पिटिटर्स को ये बढ़ा रहा है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, द चेयरमैन ऑफ जेल convened a strategic meeting with the board of directors, divisional head marketing executive and the group CFO. The meeting focused on formulating growth strategies for the renewable energy division, identifying opportunities for diversification and announcing an interim dividend in honor of GEL's platinum jubilee celebration। तो क्या कर रहे हैं, एक इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं जेल के प्लैटिनम जुबली पे, राइट। एंड इन दिस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविजनल हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, ग्रुप ऑफ CFO के साथ मीटिंग करी है एक्सपेंशन को प्लान करने के लिए। मिस्टर अरविंद मल्होत्रा
the CEO of the Renewable Energy Division, emphasized the industry's slow pace of modernization compared to global standard. Slow pace of modernization in industry में. He highlighted the potential in emerging product categories such as next gen solar panels, energy storage systems and advanced wind turbines. तो अरविंद मल्होत्रा ने क्या हाईलाइट किया कि जो इंडस्ट्री है हमारी, वहां मॉडर्नाइजेशन का जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, और अभी हमारे पास नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है. नेक्स्ट जेन सोलर पैनल्स की बात करें, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की बात करें या एडवांस्ड विंड टर्बाइंस की बात करें, दीज टेक्नोलॉजीज आर देयर. तो क्यों ना हम इसे इनकॉर्पोरेट करें. He proposed a modernization initiative requiring an investment of 7,000 crores. The transformation is projected to reduce operational cost by 20% and minimize wastage by 12%. The CFO presented an analysis revealing that the competitors are unlikely to invest in significant upgrades or expansion for next 6 to 8 years. साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये भी ध्यान में रखो कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो अगले 6 से 8 साल इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं जा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स. In response, the board approved the modernization initiative and allocated additional 1,500 crores to strengthen the division supply chain. उन्होंने अप्रूव कर दिया प्रोजेक्ट को, 1500 करोड़ इशू किया और साथ ही साथ डिवीजन के सप्लाई चेन को भी स्ट्रेंथन करने के लिए अलाउ किया. Another proposal discussed was GEL's entry into the electric vehicle. तो पहला प्रपोजल था मॉडर्नाइजेशन का, दूसरा प्रपोजल आया डाइवर्सिफिकेशन का, हम ईवी सेगमेंट में एंटर करें. The board approved the diversification strategy, allocating 8,000 crores to establish a foothold in the rapidly growing market. Additionally, the board authorized the distribution of an interim dividend of rupees 75 per share to the commemorate GEL's platinum jubilee. साथ ही साथ उन्होंने 75 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड को भी अलाउ किया. In preparing of these strategic initiatives, the board also evaluated key stakeholders to determine their influence and interest. Shareholders and the board of directors emerged as the primary stakeholders with both high influence and interest, necessitating active engagement to secure their support. Regulatory authorities were recognized as influential but less interested in immediate plans, requiring regular updates to ensure compliance. Customer and employees, while not as powerful, were identified as highly interested stakeholder, particularly concerning the renewable energy division, modernization and its entry into the EV market. So this is Mendelow's matrix. ये क्या है मेरा? ये Mendelow's matrix है, मतलब की स्टेकहोल्डर मैनेजमेंट मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, है ना. तो ये पूरा पैराग्राफ किसको है? ये आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर को है. करेक्ट. ये आपका सिनेरियो था, इसके आधार पे क्वेश्चन है. बड़ा सिंपल है, फटाफट करते चलो. GEL has approved significant investment in modernizing its renewable energy division, है ना. इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है. एंड एंटरिंग द ईवी, और साथ ही साथ ईवी में भी एंटर किया. Analyze the level of strategy these decision represent and identify the correct justification for your answer. अब बताओ, ये जो मॉडर्नाइजेशन की बात करी हमने या ईवी की बात करी, इसमें कौन इन्वॉल्व था? हम बात कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, सीईओ की. तो ये आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ है, दीज आर बेसिकली व्हाट? योर टॉप लेवल स्टाफ, योर कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ. तो ये किस लेवल का काम है कि हमें एक नया ईवी सेगमेंट में जाना है, तो ये कहां डिसाइड हो सकता है? तो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन कॉर्पोरेट लेवल ओनली. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, कॉर्पोरेट लेवल, as they involve decision impacting the overall portfolio and diversification of GEL. Question number 2. With the merger of Nova Green and Zenith, दोनों ने मिलकर क्या किया? SRL को बना दिया था. तो Nova Green and Zenith Limited into Synergy Renewable Limited SRL. How does this development influence GEL's strategic priorities in the renewable energy sector under Porter's 5 forces framework? तो हमने कहा सर rivalry among firm, ठीक है, rivalry among firm. तो ये रहा C. It heightens the intensity of industry rivalry by creating a stronger competitor with a greater market share. तो ये rivalry among firm का पॉइंट था, हमने केस में ही उसको हाईलाइट कर लिया था. तो C हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. GEL's decision to enter EV market represents a diversification strategy, no doubt. Evaluate what type of diversification strategy is being pursued and the reasoning behind this classification. तो किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन? ये टोटल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है. ये क्या है? अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है. सो दिस इज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन. क्यों कह रहे हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन? बिकॉज इट इज द GEL एंटर्स इन एन एंटायरली अनरिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस सेगमेंट. ईवी एक बिल्कुल ही अलग, एंटायरली डिफरेंट
और इंडिपेंडेंट बिजनेस सेगमेंट था। और जब आप एक इंटायरली डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट में एंटर करते हो तो उसको हम अनरिलेटेड या कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, जेल आइडेंटिफाइड शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द की स्टेक होल्डर। ठीक है, एनालाइज द रैशनल फॉर क्लासिफाइंग देम एज बोथ हाई इन्फ्लुएंस एंड हाई इंटरेस्ट एंड हाउ दिस इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। नाउ जैसे ही हम की स्टेक होल्डर में किसी भी स्टेक होल्डर को प्लेस करते हैं, इसका मतलब रेगुलर बेसिस पे हर एक तरह की इंफॉर्मेशन हमें उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। उनका हाई एंगेजमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो हमसे जस्टिफिकेशन पूछा जा रहा है कि ठीक है, हाई इन्फ्लुएंस एंड हाई इंटरेस्ट में हमने रखा इसको, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो देखो, दे डायरेक्टली इंपैक्ट कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स नेसेसिटिंग रेगुलर अपडेट्स। नो, है ना। अब यहां कंप्लायंसेस को इंपैक्ट करने की तो बात ही नहीं है। Their vested interest in dividends and long-term value creation makes their engagement essential for approval of key initiatives. Correct. तो अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन डिविडेंड्स। और आपने देखा कि दोनों आपने देखा कि डिविडेंड को अलॉ किया गया था, राइट? सो दे अनाउंस्ड फॉर दैट एज वेल। So their vested interest in dividends and of course they have interested with the value creation. तो हम जानते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू क्रिएशन ऑफ कंपनी की हम बात करते हैं, दैट इज अ बेसिक ऑब्जेक्टिव व्हाट अ बिजनेस हैव टू अचीव। सो दिस इज द आइडिया। हम कहते हैं क्यों हमने इसको हाई इन्फ्लुएंस एंड हाई इंटरेस्ट में रखा, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिकॉज हम कहते हैं कि बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन डिविडेंड एंड सर्टेनली दे आर इंटरेस्टेड फॉर द वैल्यू क्रिएशन ऑफ द कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में उनका एंगेजमेंट क्या है? एसेंशियल है बिफोर एनी अप्रूवल टू एनी इनिशिएटिव। So correct option is B. Question number 5. By approving modernization in renewable energy and diversification into EV, what corporate strategy GEL is pursuing? And how does it position the company as per ANSOF's product market growth matrix? अगर हमने renewable energy में modernization की बात करी and diversify किया किसमें? EV में. So what corporate strategy is GEL pursuing? तो जेल किस तरह के कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को परस्यू कर रहा है? हाउ डज इट पोजीशन द कंपनी एज पर ANSOF's प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स? तो किस तरह का ग्रोथ है ये? हम कहते हैं सर ये ग्रोथ ही है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये ग्रोथ ही है, ये डाइवर्सिफिकेशन है ना। एमसीक्यू में भी 2 क्वेश्चन डाल देते हैं एक साथ ठीक है, केस सिनेरियो में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ढूंढो भाई, कॉस्ट लीडरशिप नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, मार्केट पेनिट्रेशन नहीं, डी इज द आंसर। मार्केट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन to capture growth opportunity across unrelated industries। अब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, मीनिंगलेस क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। एक्सपेंशन था भाई, डाइवर्सिफिकेशन था, राइट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है? देखो, इन द एवर ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। होराइजन टेक आपकी कंपनी का नाम है। फाउंड इटसेल्फ एट अ क्रॉसरोड इन 2018। द कंपनी फाउंडेड अ डिकेड अर्लियर had established itself as a key player in the global market for smartphones and other electronics. However, the pressure to stay relevant, meet customer demands, and fend off competitors was mounting. Pressure बहुत ज़्यादा था competition से. This is a story of how Horizon Technologies navigated its challenges, leveraging key business strategies and analysis to achieve remarkable success. अब स्टोरी शुरू होगी। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में है, होराइजन टेक नाम है कंपनी का, स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है इनको, बहुत तरह के चैलेंजेस इन्होंने फेस किया। तो अब देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो होराइजन टेक रिकॉग्नाइज द नीड टू डिवाइड द ऑपरेशन। सबसे पहले तो इन्होंने ये समझा कि भाई हमें हमारे ऑपरेशंस को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। टू फाइंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, दे कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग बोथ प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। तो ये आपका वैल्यू चेन एनालिसिस आ गया। और हम जानते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय माइकल पोर्टर। वहां जहां उन्होंने बिजनेस के एक्टिविटीज को 2 तरह के एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई किया, वैल्यू चेन के एक्टिविटीज को। एक है प्राइमरी एक्टिविटीज, एक है सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है, ऑपरेशंस होता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स क्या काम करते हैं और हम सर्विस को लेके आते हैं वहां। और जब सपोर्ट एक्टिविटीज की बात करते हैं, इन दैट वी हैव द प्रोक्योरमेंट, वी हैव द एचआर मैनेजमेंट, वी हैव द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये प्राइमरी एंड हमारे पास सपोर्ट एक्टिविटीज होते हैं जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया। By streamlining processes and eliminating redundancies, the company reduced production cost and enhanced product quality.
इन्होंने रिडेंडेंसी को एलिमिनेट किया, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया, एज अ रिजल्ट कॉस्ट कम हो गया और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई. दिस अलाउड देम टू ऑफर मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, दस गेनिंग स्ट्रेटेजिक एज इन द मार्केट. सो लोग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑफर करने में दे आर नाउ सक्सेसफुल. द कंपनी सीईओ मिस्टर जोनाथन मर्सर was known for his authoritative management style. His challenge was to transform his leadership approach to one that encouraged creativity. Change करना है इनको किसमें? That encouraged creativity and teamwork within the SBUs. Mr. Mercer invested in leadership development program for middle and senior manager to enhance their interpersonal and communication skills. The transition wasn't easy, but it fostered a more collaborative and dynamic work environment. तो समझ गए ना, ऑथोरिटेटिव से किस में कन्वर्ट किया इन्होंने? ट्रांसफॉर्मेशनल में. ऑथोरिटेटिव से किस में कन्वर्ट कर लिया? ट्रांसफॉर्मेशनल में लीडरशिप को कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आप क्रिएटिविटी की बात करते हो. क्रिएटिविटी ट्रांजैक्शनल में अलाउड नहीं होता. क्रिएटिविटी हमेशा कहां जाता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में जाता है. तो पहले ये ऑथोरिटेटिव थे, अब ये किस में जा रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल में. इसके लिए उन्होंने लीडरशिप प्रोग्राम वगैरह को रन किया है. राइट. दे डिड नॉट स्टॉप देयर. Horizon Tech adopted a SBU structure. कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्ट किया इन्होंने? SBU structure, dividing the company into smaller, more manageable units. Each SBU was tasked with focusing on a specific product line. हर एक SBU का अपना प्रोडक्ट होता है. This decentralization empowered individual unit to make strategic decisions autonomously, leading to a quicker market response and a deeper understanding of customers' need. It was the catalyst for innovation and improved customer satisfaction. So SBU structure पे वो चले गए. Post organizational change, Horizon Tech strategized to embrace a cost leadership strategy to position itself as the go-to brand for affordable yet high quality electronics. तो उन्होंने क्या किया? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को परस्यू किया. By optimizing production processes and supply chain management, the company achieved cost efficiencies that competitors struggled to match. This not only attracted cost-conscious customers, but also enabled the company to maintain healthy profit margins. तो अब इन्होंने क्या किया? अपने कॉस्ट को कम किया, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करके, सप्लाई चेन को मैनेज करके अपने कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम किया. एज अ रिजल्ट वो अपने प्राइस को कम कर सकते थे. दे हैव अचीव्ड व्हाट? कॉस्ट लीडरशिप. एज होराइजन टेक expanded into new international market, the management recognized the importance of adapting to the local environment. अभी इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो लोकल एनवायरमेंट से अडॉप्ट करना होगा. कंटेनिंग अ थॉरो पेस्टल एनालिसिस. देखो किसका जिक्र आ गया? पेस्टल का. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल proved pivotal for navigating complex market dynamics. This analysis highlighted specific challenges, especially in understanding the socio-cultural trends and regulatory differences across regions. By leveraging these insights, Horizon Tech was able to overcome these obstacles, customizing its products, marketing strategies, and operations to align more effectively with local preferences and regulations, ultimately contributing to their success. With the help of Pestel, उन्होंने क्या किया? रीजन्स के एनवायरमेंट को, एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंट को थॉरली समझा. Through these strategic moves, Horizon Tech experienced a remarkable transformation. Within 2 years, their market share had significantly grown in local markets, whereas the cost leadership strategy resonated strongly. Their annual revenue skyrocketed by 35%, and the company saw a 20% increase in the stock price. The business case for Horizon Technologies served as an inspiration for the companies navigating competitive and dynamic industries. So this is your scenario, right? So बहुत सारी चीजों की बात की गई है इसमें. सबसे पहले तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं. ऑपरेशंस को डिवाइड किया, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया, प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाया टू गेट द स्ट्रेटेजिक एज इन द मार्केट. ऑथोरिटेटिव से ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप पे चले गए. एसबीयू स्ट्रक्चर को ऑप्ट किया, कॉस्ट लीडरशिप को परस्यू किया, इंटरनेशनल मार्केट में वेंचर किया, इसके लिए पेस्टल एनालिसिस किया, राइट, और सक्सेस मिल गया, राइट. तो जरा देखो क्वेश्चन क्या क्या है. क्वेश्चन नंबर 1. इन होराइजन टेक journey towards globalization, Pestel analysis played a pivotal role in navigating diverse international markets, correct? Which aspect of Pestel analysis proved to be the most challenging for Horizon Tech? अब Pestel का कौन सा aspect Horizon Tech के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा? तो आप क्या बोलोगे? कौन सा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है? सोशियो कल्चरल ट्रेंड को समझना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है. आई थिंक दैट इज मेंशन्ड इन द केस एज वेल. So where is Pestel? Here is Pestel. देखो क्या कह रहा है. This analysis highlighted a specific challenge, especially in understanding socio-cultural trends.
एंड रेगुलेटरी डिफरेंसेस। केस से ही उठा के आंसर हो जाएगा। तो खास प्रॉब्लम कहां फेस करना पड़ा? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एज दे स्ट्रगल टू कीप अप विद द चेंजिंग ट्रेंड एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस। केस से ही आंसर मिल गया आपको। नंबर 2, Horizon Tech implemented a strategic business unit structure to improve its responsiveness and innovation. How did the SBU structure differ from the company's previous organizational model, and what benefit did this new structure bring? तो SBU के क्या फायदे होते हैं? Right? तो कह रहा है SBU structure replaced a functional structure and empowered units to make a strategic decision. It led to quicker market response and enhanced customer satisfaction. पूरा केस से उठा के डाल दिया है इन्होंने, है ना? तो जब लंबा क्वेश्चन हो ना, केस के बाद एमसीक्यू, जब लंबा क्वेश्चन हो ना, तो समझ जाओ कि सीधा केस से उठा के क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, है ना? बी केयरफुल। द एसबीओ स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। द एसबीओ स्ट्रक्चर मेंटेन द एग्जिस्टिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। द एसबीओ स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड अ मोर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, नो। Maintain the existing but focused closely on the cost cutting. SBO structure replaced a matrix structure, ऐसा तो होता नहीं है। तो फर्स्ट इज द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। Horizon Technologies faced internal challenges including leadership struggles with an authoritative CEO. How did Mr. Jonathan Mercer transform his leadership style to foster a more collaborative work environment, and what were the key outcomes of this transformation? मतलब दिल नहीं भरता है इनका, है ना? एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं, 2 क्वेश्चन डाल रहे हैं। एनीवे, क्या किया मिस्टर मर्सर ने? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए, इंटरपर्सनल स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल को इनहांस कराया, रिजल्टेड इन अ मोर कोलैबोरेटिव एंड डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट। ये वाला आंसर होगा, सीधा केस से उठ के आ गया है ना? सिनेरियो बेस्ड आंसर है, बहुत ईजी है, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, while implementing a cost leadership strategy, Horizon Tech went beyond just streamlining their production processes. What other factors did they consider achieving cost efficiency, and how did this contribute to their success? सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे। इसमें क्या कहा था कि उन्होंने ऑप्टिमाइज किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। दे ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेस्टेड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीडिंग टू इनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। 2 चीजों की बात करी थी जब हम बात कर रहे थे लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप की। एक तो प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना, और दूसरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को करना, ताकि हम अपने कॉस्ट को क्या कर सके, कम कर सके। तो हमारा सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, again from the case scenario directly. The primary factor contributing to Horizon Tech remarkable transformation was their commitment to systematic analysis. What role did value chain analysis play in this transformation, and how did it drive their success in both local and global market? तो वैल्यू चेन एनालिसिस में किस तरह का रोल हुआ था? तो हमने कहा सर एक्चुअली दोनों तरह की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया गया था, प्राइमरी एंड सपोर्ट। सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। Value chain analysis revealed opportunities for diversification, enabling them to cater various market segments. Correct है? It allowed the company to identify and eliminate inefficiencies in their operations, resulting in cost reduction and improved product quality. है ना? This is the straight away from the case. Correct option is what? B. है ना? तो अब ये रीजन है ना, ये केस में मेंशन्ड है, आपने पढ़ा है अभी, एक बार देख लेना। So this is all about your question number 18. Let's go to question number 19. So once upon a time in the land of sun, sand and vibrant culture, there existed a company named Museo Goa, है ना? So language बड़ा interesting होता है, correct? A company that managed museums in the beautiful state of Goa. Museo Goa had a vision to celebrate the rich history and culture of Goa, but the journey was not without its fair share of challenges. देखते हैं क्या क्या challenges हैं, क्या क्या solutions थे। Museo Goa had chosen a picturesque location in the quaint village to build their first museum. However, this initial enthusiasm was met with an uproar from the local community. The villagers were concerned about the impact on their way of life and traditions. तो विलेज में इन्होंने अपना पहला म्यूजियम ओपन किया, लोकल कम्युनिटी से इनको प्रॉब्लम आई, राइट? लोकल कम्युनिटी का कंसर्न था कि उनका वे ऑफ लाइफ और ट्रेडिशन इम्पैक्ट होगा। They worried that the influx of tourists might disrupt their peaceful existence. अब उनका कहना था, गांव वालों का, विलेजेस में रहने वाले लोगों का, उनका कहना था कि भाई जब टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो हमारा जो पीसफुल लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस आएंगे। तो एड्रेस दिस चैलेंज, म्यूजियो गोवा अप्लाइड मेंडलोज मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स आप समझ गए हो ना, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है, सो जाहिर सी बात है उन्हें स्टेक होल्डर को तो देखना ही होगा। तो मेंडलोज मैट्रिक्स आया, आइडेंटिफाइंग द लोकल कम्युनिटीज एज की स्टेक होल्डर। They decided to engage in open dialogue
Understanding and respecting the villagers' concerns. Museo Goa initiated community building activities such as involving local in museum operations, supporting local artisans, and organizing cultural events that showcase the villagers' heritage. Slowly but steadily, the company transformed from being perceived as a threat to the valued partner within the community. While Museo Goa had successfully resolved their initial issue with the local community, they faced another challenge. Their location. दूसरा challenge क्या था? Location था. Although idyllic, was a bit off the beaten path. Tourists typically preferred the bustling beaches closer to the city, and this posed a real challenge. अब गोवा के टूरिस्ट यूजुअली क्या करते थे? बीचेस को प्रेफर कर रहे हैं, तो लोकेशन का एक सेकंड चैलेंज उनको फेस करना पड़ रहा है. म्यूजियो गोवा डिसाइडेड टू एम्प्लॉय अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी. अब वो क्या कर सकते हैं? कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे? अगर टूरिस्ट बीच को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सम location in some village, so they are using pricing strategy now. They priced their tickets affordably, significantly cheaper than the city's attraction. This strategy attracted budget conscious tourists who were looking for unique experiences in Goa without burning a hole in their pockets, right? As word spread about the cultural gem tucked away in the village, visitors started flocking in, drawn in not just by the museum charm but also the economical ticket prices. In the age of social media, Museo Goa knew that the word of mouth was no longer limited to whispers. They tapped into the power of social media to promote their unique museum experience. Museo Goa ran interactive campaigns encouraging visitors to share their experiences on various platforms. One particular Instagram post featuring a vibrant Goan mural in the museum went viral. This was the turning point. So उन्होंने क्या किया? सोशल मीडिया को यूज करना शुरू किया और एक पोस्ट उनका क्या हुआ? वायरल हुआ. The picture perfect aesthetics of the museum attracted influencers, bloggers and travel enthusiasts, making Museo Goa a social media sensation. Visitors came pouring in, not just from India but from across the globe, eager to capture their own moments and the Instagrammable Museum of Goa. With success came ambition. So Museo Goa decided to expand its footprint beyond Goa, right? Success mila Goa mein, so now they want to expand. To guide this expansion, they conducted a strategy audit and trend analysis. They identified emerging cultural and tourism trend and found potential markets in Pune and Trivandrum. इनको दो जगह मार्केट दिखा, पुणे और त्रिवेंद्रम में. आफ्टर डूइंग प्रॉपर एनालिसिस, ये दो जगह अपॉर्चुनिटी इन्हें दिखी. सो इन पुणे, म्यूजियो गोवा curated a special exhibition that celebrated the fusion of Goan and Maharashtrian cultures. They strategically partnered with local influencers and travel agencies to market the new experience. The expansion into Pune was met with resounding success. Likewise, they went for Trivandrum. For Trivandrum, Museo Goa recognized the importance of local traditions and distinct flavor of Kerala. They tailored their offerings to harmonize with the regional culture. Museo Goa became the gateway for tourists to explore Kerala's rich heritage, with the museum acting as a bridge between the Goa and the Kerala culture tapestry. So ये दोनों की बात कर रहे हैं. पुणे में गए तो पुणे के महाराष्ट्रियन कल्चर्स को इन्फ्यूज किया, और जब ये त्रिवेंद्रम में गए तो इन्होंने केरला के कल्चर को, उनके फ्लेवर्स को इंक्लूड किया. Museo Goa journey from initial uproar to expansion was a testament to their commitment to community building, strategic pricing, social media savvy, and key eye for trends. The company continued to flourish, celebrating the diverse cultural tapestry of India and making history come alive in every location they touched. So this is the journey of Museo Goa, right? So हमने क्या कहा? They have started as a museum from a small village. शुरू में उन्हें प्रॉब्लम आई लोकल कम्युनिटी की तरफ से, तो दे डिड द मेंडलोज मैट्रिक्स एनालिसिस, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया. लोकल कम्युनिटी को मैनेज करने के बाद उनको की स्टेक होल्डर कंसिडर करके उन्होंने मैनेज किया. उसके बाद उनके पास सेकंड चैलेंज था उनका लोकेशन, है ना. लोकेशन फार फ्लंग था, तो लोग आ नहीं रहे थे, लोग बीचेस पे रहना पसंद करते थे. तो इन्होंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का सहारा लिया, टिकट का प्राइस कम रखा ताकि लोग यहाँ आए. फिर उन्होंने सोशल मीडिया के पावर को हार्नेस किया, सोशल मीडिया को यूज किया. एक पोस्ट उनका वायरल हुआ, वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, राइट. और फिर क्या हुआ? जब वो पॉपुलर हुए तो फिर एम्बिशन आया, यानी कि ग्रोथ करने की बात आई. उन्होंने एक्सपैंड किया. दो लोकेशंस को उन्होंने फाइनलाइज किया, पुणे एंड त्रिवेंद्रम, आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस. पुणे में उन्होंने महाराष्ट्रियन कल्चर को इन्फ्यूज किया और त्रिवेंद्रम में उन्होंने केरला के कल्चर को, उसके डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स को इंक्लूड किया.
राइट? इन दिस वे दिस इज द स्टोरी. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, which strategic management concept did Mizuho Goa use to address the initial concerns of the local community? तो लोकल कम्युनिटी को उन्होंने क्या कहा कि लोकल कम्युनिटी को हमने क्या कंसीडर किया, एज ए की स्टेक होल्डर कंसीडर किया, और इसके लिए उन्होंने मेंडलोज मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया था, की स्टेक होल्डर्स, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, मेंडलोज मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया था. तो आंसर इज व्हाट, मेंडलोज मैट्रिक्स. स्ट्रेट अवे फ्रॉम केस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. Mizuho Goa idyllic location in quaint village posed a challenge as the tourist preferred beaches closer to the city. To attract visitor, Mizuho Goa priced their tickets affordably, lower pricing का इस्तेमाल किया था, cheaper than the city's attraction, drawing budget conscious tourists looking for the unique experiences. What business strategy did Mizuho Goa employ to attract more tourists? अब यहाँ कौन सा स्ट्रैटेजी लगाया गया है? तो लो प्राइस स्ट्रैटेजी है, तो जाहिर सी बात है इसे क्या कहते हैं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कहते हैं. राइट? इन्होंने क्या किया है, अपने प्राइस को कम किया है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगाई है, लो प्राइस पे ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज योर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. Question number 3. How did Mizuho Goa approach its expansion into new markets such as Pune and Trivandrum? इसमें उन्होंने किस तरह से वेंचर किया? सो इसको क्या बोलेंगे हम? सर्टेनली आउटसोर्सिंग नो, फ्रेंचाइजिंग नो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी और मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. तो ये क्या होगा? मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. हम कहाँ गए? न्यू मार्केट में गए. राइट? प्रोडक्ट थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है, but we entered into the new market, so this will be called as market development strategy. Number 4. Which elements of the 7S McKinsey model is demonstrated by the Mizuho Goa strategic use of social media and pricing strategy? तो ये तो strategy element हुआ ना, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ 7S मैकिन्से का? तो हम कहते हैं 7S मैकिन्से का ये स्ट्रैटेजी एलिमेंट हुआ. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Number 5. What played a crucial role in Mizuho Goa's success in Pune and Trivandrum? So, crucial role in Mizuho Goa's success in Pune and Trivandrum. Let's see कि कुछ additional information है क्या? They strategically partnered with the local influencers, correct? And travel agencies to market the new experience. Right? So, this is the answer. Straight away from case you can take it. Strategic partnership. उन्होंने क्या किया, लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं उनसे पार्टनरशिप किया, और वही रीजन था बेसिकली सक्सेस का. तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो दिस इज योर 5th का क्या होगा? ए होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज क्वेश्चन नंबर 20. राइट? क्विक एंड सेफ लॉजिस्टिक्स हैज बीन वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स फॉर मोर देन 2 decades. राइट? It has its own fleets and also has a business arrangement with railways. क्विक एंड सेफ क्या है? एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ट्रांसपोर्टर है, और इनके रेलवे के साथ अरेंजमेंट है. कॉम्पिटिशन विद एग्जिस्टिंग प्लेयर एंड द थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट आर increasing regularly. Customer preference and expectations are also changing. The need to consider new and improved means of transportation seems inevitable. आगे बढ़ो. The current philosophy is to bring the best user experience to its customer through timely and safe delivery of goods. While keeping this philosophy in mind, it desires to keep ahead and reap the benefits of first mover advantage in the industry. In order to achieve its growth target, the company is exploring available other options so as to have a strong presence in the supply chain management. So they are trying to explore other available options ताकि वो अपने पोजीशन को क्या कर सके? स्ट्रॉन्ग कर सके. The company is of considered view that we learn as we grow. Okay, it is known that the overall per mile operating cost decreases due to an increase in efficiency and cumulative volume of services. Correct? हम जानते हैं ये क्या कहलाता है मेरा? ये हमारा एक्सपीरियंस कर्व है. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्सेप्ट है. Since the company will have a cost advantage over the competitors due to the reduced cost of service, it can develop and adopt a penetrative pricing strategy by setting a low price to attract more customer. क्या हो गया? कॉस्ट लीडरशिप. लो प्राइस करके आप क्या कर रहे हो? ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आप क्या बन रहे हो? कॉस्ट लीडर बन रहे हो. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवे इज बिकमिंग अ कंसर्न. ग्रोथ रेट इज स्लो एंड द मार्केट फॉर एरियाज बीइंग कवर्ड बाय दिस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय एंड लार्ज स्टेबलाइज्ड. सो मार्केट इज स्पेशलाइज्ड. देखो ग्रोथ रेट क्या है? स्लो है. जब हम ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवे की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट क्या है? स्लो है. एंड द मार्केट फॉर एरियाज बीइंग कवर्ड फॉर दिस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय एंड लार्ज इज स्टेबलाइज्ड. इसका मतलब ये किस स्टेज में है? ये मेच्योरिटी स्टेज में. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल स्टडीइंग द केस.
इन एवरी पैराग्राफ यू विल फाइंड अ कॉन्सेप्ट। आपको उसको बाइफर्केट करते हुए चलना है, आपके दिमाग में उसकी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई इस पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बढ़ो। ऑन द अदर साइड, one of the customer segment is looking for the fast delivery of its goods. One of the customer segment is looking for, one of the customer segment, we are talking about the niche, fast delivery of goods in major cities of all across the country. तो यहां क्या मिल गया मुझे? niche मिल गया। The prime consideration of such customer is quick and safe delivery of their products irrespective of cost for the same. The target market for such services is very large and also increasing very fast. टारगेट मार्केट क्या है? बहुत बड़ा है और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। अब एक प्रॉब्लम है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अब हम कह रहे हैं कि वन ऑफ द कस्टमर सेगमेंट, तो अब हम ये मान के चले कि कस्टमर सेगमेंट जो है ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बिकॉज द टारगेट मार्केट फॉर सच सर्विसेज इज वेरी लार्ज। टारगेट मार्केट बहुत बड़ा है। इन व्यू ऑफ द सेम, the company wants to reform its operation by engaging a dedicated team to perform a niche marketing strategy for transporting such goods through airways on an assurance of delivery by next day. तो क्या दे रही है? डिलीवरी बाय नेक्स्ट डे का एश्योरेंस दे रहे हैं और एयरवेज से ट्रांसमिट करने की बात कर रहे हैं। देखो यहां से कस्टमर सेगमेंट से जब आगे बढ़ते हैं तो टारगेट मार्केट इज वेरी लार्ज, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट इनका अगला स्टेटमेंट उस कंफ्यूजन को खत्म कर देता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द निश मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि हमने जो ये निश आइडेंटिफाई किया था हम यहां सही हैं। सो दिस इज अ सिनेरियो, राइट? ये क्या है? एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, करेक्ट? और क्या कर रहे हैं ये? पेनिट्रेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी को इन्होंने यूज किया, यानी कि कॉस्ट लीडरशिप को यूज किया। रेलवे के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो मैच्योरिटी स्टेज में है। एक कस्टमर सेगमेंट है जो एयरवे से डिलीवरी चाहता है, उनको डिलीवरी बाय द नेक्स्ट डे का प्रॉमिस करके ये इसको सर्व करना चाह रहे हैं। इसके लिए इन्होंने निश मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाया। यही आपका केस है। देखना क्वेश्चन नंबर 1, द स्ट्रेटजी इन विच company wants to keep ahead and reap the first mover advantage in the industry is known as. अगर आप if you want to keep yourself ahead and reap the first mover advantage, इसका मतलब आप क्या हो गए? प्रोएक्टिव हुए या रिएक्टिव हुए? तो हम कहेंगे सर ये क्लियर कट केस है किसका? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी का, क्योंकि आप एडवांस में एक्ट कर रहे हो ना। और जब हम एडवांस में, जब हम प्री प्लान्ड होते हैं तो उसको प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का एक और नाम है इंटेंडेड स्ट्रेटजी। एक क्वेश्चन में हम उसको देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन कंटेक्स्ट टू सर्विस इन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवेज, द कंपनी इज एनालाइजिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ऑन वन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन अनदर एक्सिस। तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को और टाइम को अगर हम एक्सिस पे लेते हैं तो वी गेट द लाइफ साइकिल। तो एज पर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विच स्टेज दिस सर्विस इज पासिंग थ्रू। तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, तो अगर हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को पीएलसी पे देखें तो किस स्टेज में जाएगा? तो हमने पहले ही केस में ही आइडेंटिफाई किया था कि सर वो मैच्योरिटी स्टेज में, उसका ग्रोथ ऑलरेडी क्या हो चुका है? स्लो हो चुका है। सो दैट इज द मैच्योरिटी स्टेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्रीज इन ओवरऑल पर माइल ऑपरेटिंग कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड क्युमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज इज डिपिक्टेड एज। So with increasing volume of production, cost per unit decreases. Now this is called as economies of scale that is basically achieved through experience curve. One of the factor is experience curve. तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, experience curve, Ansoff's matrix, surveillance and value chain analysis. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? experience curve is the correct answer of question number 3. इसका आंसर जो इंस्टीट्यूट का आंसर है वो गलत है। इसमें शायद उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ और आंसर बोल दिया है। एक बार चेक कर लेना, अगर मैं सही हूं तो शायद इसी क्वेश्चन में एरर है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस में एरर हैं, मतलब देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें एरर है। उन सारे एरर्स को मैं आपको सही करता हुआ चल रहा हूं। तो आप व्हाटएवर आंसर यू आर गेटिंग दैट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिवाय एक क्वेश्चन को छोड़ के, एक क्वेश्चन पे विवाद है, लेकिन कस्टमर प्रेफरेंस मैंने बोला था कि हम दोनों जगह कस्टमर प्रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। याद करो 2 सिमिलर केसेस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 था एक, और एक क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, आई थिंक 17 था शायद, आप वो चेक कर लेना। दोनों क्वेश्चन सेम है। और उसके एक एमसीक्यू में एक डाउट था कि एक जगह आउटसोर्सिंग और एक जगह कस्टमर प्रेफरेंस को हमने एज अ ऑप्शन लिया था। हमने कहा था दोनों जगह हम कस्टमर प्रेफरेंस को रख सकते हैं, बिकॉज आउटसोर्सिंग की भी बात नहीं हो रही है केस सिनेरियो में और कस्टमर प्रेफरेंस की भी बात नहीं हो रही है केस सिनेरियो में। सो सेम आंसर कैन बी अप्लाइड इन बोथ प्लेसेस। एज पर द स्ट्रेटजीज, इन फैक्ट कस्टमर प्रेफरेंस इज मोर सुटेबल आंसर। एज पर द स्ट्रेटजी प्रोपेगेटेड बाय माइकल पोर्टर, niche marketing strategy for transporting goods through airways for a large customer segment on assurance of delivery by the next day is known as. अब ये पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रैटेजी है। देखो निश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ये बात कर रहे हैं,
और कह रहे हैं फॉर ए लार्ज कस्टमर सेगमेंट। अब इसमें उलझना नहीं है हमें, है ना, यही बवाल हुआ था उस क्वेश्चन में जिसमें मैंने आपको बोला था कि कस्टमर प्रेफरेंस आंसर ले लो, राइट, या आउटसोर्सिंग आंसर ले लो। तो यही दिक्कत आती है। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप निश भी कह रहे हो और लार्ज कस्टमर सेगमेंट भी कह रहे हो। बट अगर निश है तो हम समझते हैं कि निश का साइज बड़ा है, ऐसे समझेंगे। अब हम इसको क्या बोलेंगे, निश का साइज बड़ा है। सो और डिलीवरी बाय नेक्स्ट डे का हम एश्योरेंस दे रहे हैं। तो एक तो निश है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फोकस्ड हो गया, राइट। एंड डिलीवरी बाय नेक्स्ट डे के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो ये होना चाहिए फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अब बस एक चीज चेक कर लेते हैं कि उन्होंने कॉस्ट की तो बात नहीं कर दी है। देखो, on the other side, one of the customer segment is looking for fast delivery of its goods in major cities all across the country. The prime consideration for such customer is quick and safe delivery for their product, irrespective of cost for the sale. यानी कि they are not price conscious buyer. तो for this service you will charge high. आप क्या करोगे, हाई चार्ज करोगे। तो yes, it is focused differentiation, not cost leadership. क्योंकि ये जो कस्टमर्स हैं ये प्राइस को लेके कंसर्न नहीं है। तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हो जाएगा हमारा C. Answer is focused differentiation strategy. Question number 5. The philosophy of the company is stated as to bring the best user experience to its customers through timely and safe delivery of goods. Right? It is indicating towards what? To bring the best user experience to its customer through timely and safe delivery of goods is indicating the mission statement of the company. ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मिशन स्टेटमेंट को। इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप अपने अल्टीमेट टारगेट को, अपने विजन को आप अचीव कर पाओगे, राइट। सो दिस इज द मिशन स्टेटमेंट। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 20 तक। देखो टोटल 30 क्वेश्चन हैं इस शीट में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शीट अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के 10 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। खुद भी तो करोगे, सारे आंसर्स मैं ही बता दूंगा क्या। बाकी के 10 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और निश्चित रूप से उसको खत्म कर लो, उसको पेंडिंग में मत रखना कि बाद में कर लेंगे। डू इट एट वंस। और अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आई एम अवेलेबल राउंड द क्लॉक। अगर आप कमेंट करते हो ना, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, कुछ भी क्वेरी रेज करते हो, तो मैं निश्चित रूप से आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अब सवाल आता है कि सर जब हम केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज की बात करते हैं तो किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किस तरह के टॉपिक्स पे एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज में देखने को मिलते हैं। तो इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मैं आपको रिलीज करूंगा, राइट, छोटे से वीडियो में, ताकि आप आसानी से फटाफट वो सारे कॉन्सेप्ट्स को देख सको। तो मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपको दूंगा। इस वीडियो में मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूं, एक छोटा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जस्ट बैक टू बैक। आप चैनल पे चेक करो, आपको मिल जाएगा, शॉर्ट्स में मिल जाएगा या वीडियोस में मिल जाएगा। एंड इन दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। और उस लिस्ट में आपको मैं उस सारे टॉपिक्स का जिक्र कर दूंगा जहां से सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं, अदर एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट, और जहां से कंपैरेटिव डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसकी एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स की, ताकि आपका फोकस बहुत क्लियर हो, करेक्ट। सो हम यहां रुकेंगे बालक। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लास्ट के 10 क्वेश्चंस करने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं। आपको लास्ट के 10 क्वेश्चंस को पूरी तरह से कवर करना है, राइट। और डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वेदर यू आर एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस और नॉट, या आपको किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की डिफिकल्टी हो रही है, करेक्ट। स्टॉप हियर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, जब हम एफएम की बात करेंगे और एफएम के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में आपको कवर कराऊंगा। तो सी यू नेक्स्ट सेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, कीप वर्किंग।